तो हमारा पहला संदेश जो है डॉक्टर लता क्रिस्टी जो हमारे बीच में आए हैं, आइए हम ताली बजाकर उनको प्रभु का वचन बांटने के लिए स्वागत करें। Praise God. Pleasure for me to be here yesterday and today too. और कल और आज मैं आप लोगों के बीच में रहा, वो मेरे लिए आनंद की बात है। So today I was praying, God, what should I speak? And I felt that I should speak on holiness that leads to revival. और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं क्या प्रचार करूं कलीसिया में, तो प्रभु ने कहा पवित्रता जिससे एक बेदारी आती है। You know, have you ever slept under an open sky? क्या आप खुले आसमान के नीचे कभी सोए हैं? If you look up at the sky, you will see the stars, numerous stars. और जब आप खुले आसमान के नीचे सोते हैं तो आप बहुत सारे तारों को देख सकते हैं। There are billions and billions of stars. Not only that, billions of galaxies. और जब आप ऊपर तारों को देखते हैं तो करोड़ों करोड़ों तारे होते हैं। वो तारे ही नहीं होते, वो ग्रह होते हैं। So the God you worship is beyond your wildest imagination. और जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं वो आपके दिमाग की सीमाओं में कभी समझ नहीं पाओगे। In our galaxy, a small portion, to count the stars, you need 2,500 years if you count one star per second. अगर एक सेकंड में आप एक तारा गिन सकते हो तो आपको 2500 साल लगेंगे सारे तारों को गिनने में। That's why when I was understanding all these things, because some people say everything came by accident, there is no God. But when I was understanding more about science, God became more clearer to me. और इस विज्ञान को जब मैं समझ रही थी, इस विज्ञान की बातों को हम पढ़ रहे थे, तब कई लोग कहते हैं कि ये सब अचानक उत्पन्न हो गया, मगर ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता है। So I wrote this book, Beyond the Boundaries of Science, exploring the cosmic story, to show that through cosmology, through genetics, through biology, how this God makes more sense. तो इन्होंने एक किताब लिखा है जिस किताब का नाम है, और इस किताब का नाम है विज्ञान की सीमाओं से परे परमेश्वर की महानता। So even evolution is scientifically wrong. और विज्ञान की तरफ से हम देखे जाए तो लिखी गई और बताई गई बातें गलत है। So that is when I know this God is too big, too great to understand, to comprehend. मेरी विज्ञान की पढ़ाई की वजह से मैं समझ पाई कि परमेश्वर बहुत बड़ा है और वो सीमाओं से पार है। Even in a tiny dot in your cell, there is this DNA which has 3.1 billion bits of information. और आपके शरीर में एक डीएनए कर एक सेल होता है, मगर उसमें 30 लाख विज्ञान की बातें हैं। Everything is so beautifully designed, the stars, the gravity, the units, everything, so that you will live here. और आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने विज्ञान का इस्तेमाल कर बहुत सारी चीजें बनाई है ताकि आप उसमें अच्छे से जी सके। So many planets are found, no aliens are found yet. और कई सारे ग्रह हैं मगर आज तक किसी एलियन का खोज नहीं हुआ है। Because you are beautifully designed. क्योंकि सिर्फ आपको प्रभु ने सुंदरता से बनाया है। That is why Matthew 10:30 to 31 says, even every hairs in your head is numbered. That's why you are more than worth than anything else. और इसीलिए मत्ती 10:31 कहता है कि तुम डरो मत और तुम्हारे सिर के हर एक बाल गिने गए हैं। Bible says in Psalm 33:6, by the word of the Lord the heavens are made, the starry host by the breath of his mouth. बाइबल 33:6 के भजन संगीता में इस तरीके से कहते हैं, आकाश मंडल यहोवा का वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। Isaiah 40:25 to 26 says, to whom will you compare me? Who is my equal, says the Holy One. Look up to heavens. Who created all these things? और यशायाह की 40वीं अध्याय की 25 और 26वीं आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की तुलना कौन कर सकता है, उसके योग्य उसके बराबर कौन है।
That is why, looking at it, David called out in Psalm 8:3-4, when I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast created, what is man that you're mindful of him, the son of man that you're thinking of him? इसीलिए दाऊद इस तरीके से भजन संहिता 8 में लिखता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों के कार्य हैं और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि इंसान क्या है जो तू उसे याद करे. But this great God comes and looks at you and says, I know you by name. You are precious to me. और ये महान परमेश्वर हमें आकर कहता है, मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूं और तेरे लिए योजनाएं हैं. That moment changes everything in someone's life. Their realization that this God who created this big God loves me. और जब ये परमेश्वर हमसे बात करता है, तब हमें लगता है इतना महान परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. You know, he came down, he left the great glory of heavens, came down to this tiny planet to die in a shameful way on the cross. और वो इतनी महान स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर एक छोटे से इस दुनिया में आ गया और क्रूस पर तमाशा बनकर हमारे लिए मरने के लिए उसने तैयार हो गया. On the cross, he took the whole dirty sin of the whole world and he cried out, my God, why have you forsaken me? उसने क्रूस पर हमारे सारे गंदे पापों को उठा लिया और चीख चीख कर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया. That time, the veil in the temple was torn from top to bottom. You can now go and approach the great and powerful God directly, no need of anyone. और तब उस समय वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग में फट गया और कहा गया, अब तुम्हें परमेश्वर के करीब आने के लिए कोई रुकावट नहीं है. That is the power. If you see that movie, The Lion King, when the little lion cub was tried to be attacked by the hyenas, what happened? There was a big roar. आप उस समय देख सकते हैं जब ये लायन किंग की एक मूवी आई थी, जहां पर एक छोटा सा शेर का बच्चा और सारे गीदड़ों के बीच में फंस गया था, लक्कड़ बग्गों के बीच में फंस गया था और वो सारे उसे मारने के लिए, काटने के लिए आ रहे थे, मगर अचानक से उसके बीच में एक दहाड़ने की आवाज आई. So its father has come, Mufasa. That's when every hyenas ran away. Your God is so powerful to protect you. और जब वो बच्चा चीख रहा था तो उसका पिता मुफासा आ गया और सारे हायने उससे वहां से भाग गए. So now I wanted to ask you, this is my sermon. Would you like to walk with this God? और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं जो कि मेरा प्रचार है, क्या तुम ऐसे महान परमेश्वर के संग चलना पसंद करेंगे? You want to know about him more? क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानना पसंद करेंगे? Yes. See, Paul cried out, I want to know about this Christ, to know the power of his resurrection and the participation of his suffering. और ऐसा ही लोगों ने कहा, पर इस महान परमेश्वर को मैं जानना चाहता हूं और उसके बारे में और जानना चाहता हूं. So today speak to God. God, I want to know you more. I want to know who you are. I want to walk with you. I want to hold your hand. And when the enemy sees me, it should see you. और जब हम लोग परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको और जानना चाहता हूं, आपकी महानता के बारे में और जानना चाहता हूं, आप कौन हैं करके पहचानना चाहता हूं. You know, the Bible talks about a man called Enoch, and he walked with God for 300 years. और बाइबल एक इनोश नाम के व्यक्ति के बारे में बात करती है जो 300 साल तक प्रभु के संग चलता गया. Walking so closely with God, holding his hand, and finally entering into heaven. So beautiful life, right? कितनी सुंदर बात है ये, 300 साल तक परमेश्वर के संग चलना और प्रभु के हाथ पकड़कर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना. But this walking with God changes three main things. और जब प्रभु के संग आप चलने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में 3 बदलाव आते हैं. The way how we behave, how we talk, how we think, how people look at us. और पहला बदलाव आपके अंदर होता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे आपके चाल चलन है, कैसा आपका स्वभाव है. The second, how demons look at us. और दूसरा, दुष्ट आत्माएं आपको कैसे देखती हैं. The third, how it changes your prayer life totally. और तीसरा, आपकी प्रार्थना का जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है. You know, Moses, he did so many things. He did so many miracles. He brought fire and then he could get manna. But one thing he asked,
Lord, show me your glory. और मूसा देखे बहुत सारे अद्भुत कार्यों को कर कर इतने सारे लोगों की अगुवाई कर कर वहां पर आया, मगर वहां पर वो एक बात परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु मुझे अपनी तेज दिखा. So Bible says God told him in Exodus 30:20-23, you cannot see my face, no one can see me and live, but I am going to cover you with my hand, and when I remove my hand you will see my back. और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू मेरे चेहरे को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, मगर मैं एक कार्य करता हूं, तेरी आंखों को छुपाकर मैं आगे से गुजरूंगा ताकि तू मेरे पीछे हिस्से को देख सकता है. That old man Moses was holding the rock and he looked at God, his face totally changed. और इतने दिन तक 40 दिन तक वो परमेश्वर की ओर देखता रहा, ताकता रहा, और 40 दिन में मूसा का चेहरा बदल गया. His face shined so greatly that nobody could look at him. He had to put a veil. और उसके चेहरे पर इतनी रोशनी थी कि कोई भी उसके चेहरे को सामने से देख नहीं पाया, और उसको अपने चेहरे को ढकना पड़ा. Ephesians 4:1 says, walk worthy of the vocation you are called. और इफिसियों 4 का 1 कहता है कि तुम्हें संसार से दूर निकलकर भागना है. So that is why when people, we are not able to witness for Christ because many look at Christians and walk away from Christianity because we don't reflect Christ. कई बार आपके जीवन से मसीह प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए कई लोग आपके जीवन के पास नहीं आते, आपसे दूर भाग जाते हैं. So the first thing when you walk with God, it changes the perception of others looking at you. और पहली बदलाव आपके अंदर तब आता है जब आप मसीह के संग चलते हैं, लोग आपके बारे में जो समझते हैं वो बदल जाता है. The second one, we take Acts 19:11-16. We read about Paul. प्रेरितों की पुस्तक 19वीं अध्याय को यदि हम देखें तो वहां पर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं. You know, here we can read God did unusual miracles through Paul. His handkerchiefs and aprons were taken and put on the sick and people were getting healed. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर महान कार्यों को करता है. पौलुस के रुमाल से, पौलुस के कपड़ों से लोगों को चंगाइयां मिल रही है. And then when he said the name of Jesus, demons were fleeing. और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग रही थी और चंगाइयां हो रही थी. So people started to think, okay, I will also use the name of Jesus. So 7 sons of Sceva, they said the same way in the name of Jesus, they commanded the demon to come out. और वहीं पर यीशु मसीह के नाम से वहां पर लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे. But what happened, you know, the demon said, Paul, I know, Jesus, I know, who are you? और वहां पर दुष्ट आत्मा क्या बोलने लगी, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं जानती हूं, तू कौन है? And the evil spirit jumped on them. और दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों ने आकर उनके ऊपर कूदे. So this reveals a very powerful truth. और ये एक बहुत सच्चाई की बात बताती है. Paul was a friend of God. He walked with God. पौलुस यीशु के संग चलता, परमेश्वर के संग चलता था. His prayers shook the spirit world. His words carried authority. और उसकी प्रार्थनाओं ने आसमानों को हिला दिया, और उसकी प्रार्थना में जो अधिकार था वो अधिकार से कार्य होते थे. Why, you know, he said in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. और गलातियों 2:20 में यदि हम पढ़े तो वो इस तरीके से लिखता है कि अब मैंने अपने आप को मसीह में क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब मैं नहीं, मुझ में मसीह जीवित है. So in hell, Paul's name was there, and the demons were scared of Paul's name. और नरक में पौलुस का नाम था और दुष्ट आत्माएं पौलुस के नाम से डरती थी. So demons know that we are using God's name in vain or really living in the presence of God and then using his name. दुष्ट आत्मा बड़े अच्छे से जानती है आप जो परमेश्वर का नाम लेते हैं वो सामर्थ्य से लेते हैं या ऐसे ही आप उसे अंधविश्वास में लेते हैं. So if we do not walk with God, our word does not have any authority. अगर आप उसका नाम में कोई अधिकार नहीं है जैसे लेते हैं. So Paul spent hours spending time at the feet of God. He read the word of God. और उसने परमेश्वर के शब्दों को सीखा और जाना, और घंटों वो प्रभु के सम्मुख में बिताता था. He lived in the holiness of God. वो परमेश्वर की पवित्रता में जीता था. You know, Bible says, who can ascend to the hill? That is in Psalm 24:3-4. Please take. और भजन संहिता 24वीं अध्याय को यदि आप देखें तो कौन उसकी पर्वतों में ठहरेगा, Who shall stand in his holy place? और कौन उसकी पवित्र स्थानों में रहेगा? He who has clean hands and a pure heart. वही जिसका मन शुद्ध और उसके हाथ शुद्ध हैं.
So God is holy. That's why we need to be holy to walk with Him. और परमेश्वर पवित्र हैं, इसलिए हमें पवित्रता की जरूरत है कि उसके संग हम चल सके। It's living in purity, in holiness, every second, every moment. और हर दिन हर पल पवित्रता में उसके संग चलने की आवश्यकता है। That's why Bible says, be holy because God is holy. इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। You're not your own, you're purchased, you're bought with a heavy price, so glorify God in your body. आप अपने खुद के नहीं हैं, आपको एक कीमत देकर मोल लिया गया है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है। See, when you walk in holiness, what happens, you know, because why Paul could send out the demons, because Holy Spirit took residence inside him. और पौलुस क्यों खड़ा हो सका पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके अंदर घर बनाया। Holy Spirit is like a dove. पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई है He is easily disturbed. और वो बहुत आसानी से परेशान किया जाता है। So sometimes if you have a dove in your home and you every time bang the door, the dove will move out. और जैसे जैसे आप एक कबूतर आपके घर में सोच लीजिए और आप बहुत जोर से दरवाजा बंद करें तो वो कबूतर डर के मारे पीछे जाएगा। So either you have to modify your behavior if you want to have the dove, or you send out the dove. और दो चीज वहां पर हो सकती है, कबूतर घर में है करके आप अपने घर के दरवाजे को माहौल को बना के रख सकते हैं, या तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, दरवाजा खोल के कबूतर को बाहर भगा सकते हैं। So the same manner, if you want Holy Spirit to live in you, you cannot live in sin anymore. और यदि आप पवित्र आत्मा को आपके अंदर रखना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा को रखने के लिए पाप को साथ नहीं रख सकते। Each and every word that you speak should be the word of God. और हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो परमेश्वर का शब्द होना चाहिए। Many people have the Holy Spirit. Only a few Holy Spirit is hosted. He resides. और कई लोगों के पास पवित्र आत्मा है मगर कुछ लोगों के अंदर ही पवित्र आत्मा रहता है। When you see a police, when you're driving wrongly, you will at once change your speed, right? और जैसे ही आप अगर सड़क पर तेजी से चला रहे हैं और अचानक पुलिस दिख जाए, आप कितनी जल्दी धीमे कर देते हैं गाड़ी को। But Holy Spirit is not that way. When you see the Holy Spirit, you will change your behavior. और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है जो आप उसको देखते ही आपका व्यवहार बदल ले। Because He is grieved because He is living in you all the time. पवित्र आत्मा शोकित होता है आपके व्यवहार से क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। So every second, every minute, your thought should be how to please Him. How to please Him, not how avoid sin. How to please this one who is living in me. और हर बार आपको ये सोचना है कि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर रहता है, मैं उसको कैसे खुश कर सकूं, मैं उसके लिए कैसे सेवा कर सकूं। He is the one who can transform your life. और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका जीवन रूपांतर कर सकता है। That's why Jesus said, wait till you get the power from on high. और इसीलिए यीशु कहता है कि इंतजार करो जब तक तुम्हारे ऊपर सामर्थ नहीं आता। So today we were talking about this powerful God, why to walk with Him, and if you walk with Him, what all things will change in you. और ये सामर्थ्य परमेश्वर के संग आप जब चलने लगेंगे तो आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आएंगे। The first we saw about how demons are scared, how your life is changed. पहले हमने देखा कि आपके मसीह के संग चलने से दुष्ट आत्मा आपसे कैसे डरेंगी और आपका जीवन कैसे बदलेगा। And then now the last one what I said is your prayer life is totally changed. और मैंने जो आखिरी में कहा था कि आपका प्रार्थना का जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। You know, some people might think I'm very old now, I am not able to pray. और कई लोग कह सकते हैं कि मैं अब बहुत बुजुर्ग हो गया, अब मेरे से प्रार्थना ज्यादा नहीं हो पाती। In the Bible there was a man called Daniel. और बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम दानियल था। He was 80 years old. वो 80 साल का था। He served under 3 kings and no king, he never went to the king's side. Every king bowed towards him. और वो 3 राजाओं की उसने सेवा कर दी थी और वो कोई भी राजा उसके किसी भी राजा के आगे वो नहीं झुका, राजा लोग उसके आगे झुकते थे। Nebuchadnezzar, his son, and then Darius. और नेबुकदनेस्सर उसका बेटा और दारियस जो राजा था। Every second he was with God, morning, evening, night. हर पल वो परमेश्वर के संग था, सुबह शाम और रात में। Even when he was asked that if you are praying like this, you will be thrown into the lion's den, he prayed. और उसको कहा गया था अगर तू इस तरीके से प्रार्थना करेगा तो तुझे शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, पर फिर भी उसने प्रार्थना करी। That is why God revealed his secrets to him.
और इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में दानियल को रहस्यों को सिखाया. So the handwriting was on the wall. Nobody could understand, but Daniel could read that. एक हाथ आकर दीवार पे लिखता है और दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, पर दानियल उसको राजा को पढ़कर बताता है. Today, handwriting is on the wall in the whole world. You can see. आज कई सारी दुनिया में लिखे गए हैं दीवारों पर. Everywhere, war, problems, turmoil, earthquakes. हर जगह दुनिया की मुसीबतें, मुश्किलें और अकालों के बारे में लिखा है. We are in the last end times. और हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं. The world is crying out for answers. और दुनिया यहाँ पर जवाब को ढूंढ रही है. When they see the handwriting on the wall, they are not running to anybody. They'll run to a praying man, a prophet who can read that. और जब वो लेख दीवारों पे लिखा जाएगा, तब लोग उसे पढ़कर इंसानों के पीछे नहीं भागेंगे, प्रभु के लोगों के पास आएंगे. Today, God wants to empower each and every one of you that way. आज परमेश्वर आप लोगों को ऐसे सामर्थ्य से बलवंत करना चाहता है. Ezekiel 22:30 says, I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, and that I should not destroy it, but I found no one. इज़ेकियेल 22 के 32 में मैंने इस तरीके से परमेश्वर कहता है कि मैंने दीवारों को बनाकर इंसानों को ढूंढा, पर उस मध्य स्तर पर खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए मुझे एक भी जन नहीं मिला. How many of you wants to become that praying man? Lift your hands. और कितने लोग उस मध्य स्तर पर खड़े होकर प्रभु के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? I want everybody here to become a praying man and to stand in the gap and to fight against the demonic kingdom, the kingdom that stands against the kingdom of और God. मैं चाहती हूं कि इस कलीसिया के हर एक जन उस मध्य स्तर पर खड़े होकर प्रार्थना करने वाले लोग बने, जो उस दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के विरुद्ध और दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रार्थना करें. Host the Holy Spirit. He is the only one who can reveal the secret. If you are living in sin, it is impossible. पवित्र आत्मा का स्वागत करिए आपके जीवन में, और वो आपके संग है तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है. You become the dwelling place of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का रहन स्थान बन जाएंगे आप. Bible says in Zechariah 2:5, I will be a wall of fire around her. I will be the glory in her midst. बाइबल कहती है जकरिया 2:5 में, मैं आग के दीवार बनकर तेरे चारों तरफ रहूंगा. So God is looking for a resting place where He can rest, He can speak, He can reveal secrets, He can transform a person. परमेश्वर की आत्मा विश्राम के लिए एक जगह ढूंढ रही है जहां पर वो उसके अंदर आ सके, उसे बदल सके, उसको इस्तेमाल कर सके. God wants to fully possess you. और परमेश्वर की आत्मा संपूर्णता से आपको भरना चाहती है. That's happened when you radically obey Him. और वो तभी होगा जब पूरी तरीके से आप उसके आज्ञाकारी होंगे. Today, ask God to send the promise what He has told, the Holy Spirit. और आज आप परमेश्वर की ओर देखकर मांगे जो वो वादा उसने किया है कि पवित्र आत्मा को आपके ऊपर भेजेगा. When Holy Spirit came upon Mary, she gave birth to Jesus Christ. और जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया तो उसने यीशु को जन्म दिया. When Holy Spirit came upon the disciples, they gave birth to the church. और जब पवित्र आत्मा का प्रेरितों के ऊपर आया, उन्होंने कलीसिया को जन्म दिया. When the Holy Spirit fills your life becomes supernatural. और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं. Your goal will not be any blessings. Your goal will be God Himself. आमीन. आपका लक्ष्य कभी भी आशीषें नहीं होगी, आपका लक्ष्य हमेशा परमेश्वर रहेगा. It will not be about money, ambition, fame or comfort. It is to sit at the feet of God. और ये आपके पैसा, नाम, शौहरत, पद, ये सब नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ उसके चरणों को ढूंढने वाली चाहत से भर जाएंगे. This is the key to revival. और यही वो कुंजी है जो आपको बेदारी के पास लेकर जाती है. Revival starts in the secret place. और जो बेदारी होती है वो एक गुप्त जगहों से शुरू होती है. It begins when a person kneels down, breaks down before the Lord. और ये उसी के जीवन से शुरू होता है जो व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, प्रभु के चरणों में आ जाता है. You know, Isaiah was a prophet. In Isaiah 6 it says,
on the year when King Uzziah died, I saw the Lord seated on the throne, highly exalted. और यशायाह 6 के 1 से 5 यदि आप पढ़कर देखें तो वो जब हुजैया राजा मर जाता है तो वो कहता है कि मैंने आसमान खुला हुआ और परमेश्वर के सिंहासन को नीचे आता हुआ देखा. So you can see here, one is the upward vision, that is, he saw the Lord. और पहला दर्शन उसने ऊपर की ओर देखा और प्रभु को देखा. So that's what I told. First, you see the Lord who is so great. You see the Lord who is so holy. इसलिए मैंने अपने प्रचार के शुरुआत में आपको कहा कि आप पहले ऊपर के ब्रह्मांड को देखें कि परमेश्वर कितना महान है. Then the second, he looks into him. और दूसरा जो उसने किया उसने अपने अंदर देखा. He said, "Oh, is me, I am undone, I am ruined, I am a man of unclean lips, I live among a people of unclean lips." और उसने कहा हाय है मुझ पर और मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं और मैंने प्रभु को देखा है. So when he looked at the holiness of God, he understands the sin, the problem in his heart, and that's when he cries out in repentance. That's the basis for revival. और जिस वक्त उसने परमेश्वर को देख लिया उस समय वो तुरंत अपने आप को देखकर कहने लगा मैं तो पापी हूं और अशुद्ध होठों वाला हूं और मैंने अपने परमेश्वर को देखा. That's when the outward vision. He says that from one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand. And then he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away." Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? Who will go for us?" And I said, "Send me, Lord, send me. Here I am." और जब उसने पहला दर्शन उसने ऊपर की ओर परमेश्वर को देखा, दूसरा दर्शन उसने अपने आप को देखा कि वो पापी है और वो अपने आप को हाय मैंने पापी हूं करके जब बोलने लगा तो उसके अंदर से एक ही आवाज आई कि परमेश्वर को उसने सुनने लगा कि मैं किसे भेजूं अपने कार्य के लिए. तब यशायाह ने कहा मैं यहां पर हूं, मुझे भेज प्रभु. The same thing happens in every man. First, you get the realization of God, then you understand the realization of you, then you just surrender to God, and then God sends you out with power and authority. Hallelujah. और यही आप लोगों के संग भी होता है. जिस दिन आप परमेश्वर का दर्शन देखते हैं उसके बाद तुरंत आपको अपने बारे में पता चलता है कि आप कितने अशुद्ध या पापी हैं और उसके बाद आप परमेश्वर को समर्पण करते हैं और परमेश्वर आपके समर्पण के बाद आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है. So in my life, some 25 years back, मेरे जीवन में 25 साल पहले, so in 87 I joined DRDO as a scientist. और 1985 में मैंने DRDO को ज्वाइन किया एक विज्ञानी के तौर पर. 38 years after working, I'm going to retire in 3 months. और 38 साल मैंने उस जगह के लिए काम करने के बाद अब मैं 3 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगी. So in my life, when I was 20 and I got married, I struggled with violence for 20 years. और जब मैं 20 साल की थी मेरी शादी में बहुत परेशानियां आ गई और मारपीट जैसी जिंदगी थी मेरी. So that was the time I was angry on God. और वो समय था जब मैं परमेश्वर से बहुत नाराज थी. I thought God never exists. और मैंने कह दिया कि परमेश्वर कभी जिंदा नहीं है. Satan was speaking to me that better to die. और शैतान मेरे कानों में हमेशा बोलता था तू मर जा. I was walking towards the path of suicide. और मैं आत्महत्या करने के लिए जाती थी. I was doing my PhD in IISc in aerospace in Bangalore. और PhD जब मैंने एरोस्पेस बैंगलोर में किया, So that was the time I got a fever and I did not take care. It turned into a massive pneumonia. और मुझे बुखार हुआ और उस समय मैंने उस बुखार का सही तरीके से इलाज नहीं किया और वो बुखार बढ़कर निमोनिया बन गया और मैं बहुत बीमार हो गई. So that was the time the doctor said she's not going to live because both her lungs had got affected and they had to put me on ventilator. और उस समय डॉक्टरों ने घर वालों को कह दिया कि ये बच नहीं पाएगी क्योंकि इनके दोनों लंग्स काम करने बंद हो रहे हैं और उन्होंने इनको वेंटिलेटर में डाल दिया. So while I was on the ventilator, I wanted to die. और जब मैं वेंटिलेटर पे थी मैं मरना चाहती थी. I thought I'm the best person. Bible says not even one person is righteous. All your righteousness are like filthy rags. तब मैं ये सोचती थी कि मैं बहुत ही अच्छी व्यक्ति हूं और मेरे अंदर सब कुछ अच्छा है. बाद में मुझे याद आ रहा था कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है. बहुत गंदी बातें हैं मेरे अंदर.
So that was the time God showed a vision of every mistake I have done on that ventilator. और उस वेंटिलेटर के वक्त ही परमेश्वर ने मैंने जो जो गलतियां पाप किए थे वो सब मुझे दिखा रहा था। Then I saw the cross, I saw the blood of Jesus covering my sins. और उस समय मैंने क्रूस को देखा और उसमें बहते हुए लहू को देखा और मेरे पापों को सब कुछ ढापा जा रहा है करके मैं देख रही थी। Then I heard a voice, I am giving you a new life 3 times. और उस वेंटिलेटर पे मुझे आवाज आई 3 बार कि मैं तुझे अब नई जिंदगी दे रहा हूं। All the 5 days I was there, I felt the presence of God. और 5 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे थी और मुझे परमेश्वर का सम्मुख बहुत महसूस हो रहा था। I came home, something was telling me to read the Bible. और जब मैं वहां से घर आ गई तो कुछ एक आवाज बार बार आ रही थी कि अपनी बाइबल को पढ़। The Bible transformed me. और उसके बाद जब मैं बाइबल पढ़ने लगी तो मेरे परिवर्तन शुरू हुआ। March 2004 I was on ventilator and May 2005 I took baptism. और मार्च 2004 में वो वेंटिलेटर में थे और मार्च 2005 में उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। So after taking baptism, I did my Master of Divinity and MA in Southern Asia Bible College and MA Christian Studies, and now I'm doing my PhD in theology. और फिर जब उन्होंने पढ़ाई कर ली तो बाइबल में इतना ज्यादा वो पढ़ने लगे तो उन्होंने SABC से MA क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ा। अब वो PhD कर रहे हैं वहां से। Because I wanted to speak for the one who gave me voice. I wanted to live for the one who gave me life. क्योंकि अब मैं सिर्फ उसके लिए जीना चाहती हूँ जिसने मुझे जिंदगी दी है। मैं उसके काम को करना चाहती हूँ जिसने मुझे जिंदा बचाया। But you know, sometimes when you think ministry has everything and there is no door opened, sometimes you get depressed. और अगर आप सोचते हैं कि सेवकाई कुछ करना है और आपके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं तो आप निराशा में चले जाते हैं। That happened around 8 years back. 8 साल पहले मेरे संग ऐसा हुआ। That was the time God spoke to me very clearly 3 things. और उस समय जब मैं निराशाओं से गुजर रही थी परमेश्वर ने 3 बातें मुझसे बात करी। He said, this is not your ministry, this is my ministry. परमेश्वर ने मुझसे एक पहली बात कही, ये सेवा तेरी नहीं है, सेवा मेरी होती है। Second, he said, I am your Jehovah Jireh. Nobody will open the door, I will open the door for you. और दूसरा विषय उन्होंने कहा कि मैं यहोवा जायरा हूं, कोई व्यक्ति तेरे लिए द्वारों को नहीं खोलेगा, मैं तेरे लिए द्वारों को खोलूंगा। And then the third, he said, get up early morning, sit at my feet, enjoy me forever. और तीसरा उन्होंने मुझे सिखाया, हर सुबह सुबह जल्दी उठकर मेरे सम्मुख का आनंद लिया कर। That is what transformed me. और वो 3 चीजों ने मेरे जीवन को बदला। It gave me joy that nobody else can give. उसने मुझे एक ऐसा आनंद दिया जो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। My both sons are in the US and I am here, but God walks with me and He tells me that He is my own and I am His. मेरे दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं मगर मैं भारत में हूं और मैं रोज परमेश्वर के संग चलती हूं। So that is how God revives each and every one. और ऐसा ही परमेश्वर हर किसी को बदलता है। Last 10 more minutes, what I wanted to say is, God wants to revive you. God wants to revive the world through you. और आखिरी के 10 मिनट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको बदलना चाहता है और परमेश्वर आपको एक बदलाव बनाना चाहता है। In Isaiah 64:3-4, you can read, Isaiah cries out like this, when you did awesome things that we did not expect, you came down. The mountains tremble before you. And no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God who acts on behalf of those who wait for Him. जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रथम और कांप उठे, क्योंकि प्रचंड काली ही तुझे छोड़ गए और ऐसा परमेश्वर ने तो कभी देखा नहीं। That's when God comes down, mountains tremble, sin is exposed, lives are transformed, nations are shaken. और जब परमेश्वर उतर कर आता है तो जमीन पर्वत कांपने लगती है और परमेश्वर बदलाव को लेकर आता है। So Isaiah understood, I don't need anything, I just want God to come down. और यशायाह इस बात को समझ के और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु मेरे जीवन में, सिर्फ तू नीचे आ। So that is why in Isaiah 64:1 he says, oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you. इसलिए यशायाह 64:1 में उसने लिखा, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे।
So today, you see the revivals from Pentecost to Welsh revival. Everybody, it starts with the holiness. It starts with the prayer revival. एक बेंदकोस की बेदारी से लेकर आज की आप बेदारी तक अगर आप पढ़े तो देख सकते हैं कि हर एक बेदारी रूपांतर लेकर आ रही है. When you walk with God, He gives the burden for souls. और जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर खोई हुई भेड़ों आत्माओं के लिए बोझ देता है. It's not about your ministry, what you get. It is about what souls, what God has done on the cross for Him, how many souls you can get for Him. और आपके सेवकाई आपके बारे में नहीं है, पर ये सब कुछ उसके बारे में, और आपने उसके लिए कितनी आत्माओं को जीता है या उसके लिए कितनी आत्माओं को कमाया है. John Knox cried out, "Give me Scotland or let me die." जॉन नॉक्स ने इस तरीके से प्रार्थनाओं में आंसू बहाए, स्कॉटलैंड को मुझे दे प्रभु, या ना मेरे जीवन को ले ले. Even Roberts, for of Welsh revival, he cried out, "Bend me, Lord, break me, Lord." और इवन रॉबर्ट्स ने इस तरीके से आंसू बहाए, प्रभु फ्रेंच रिवाइवल को तू दे वरना हमें खत्म कर दे. Charles Finney was crying so much in prayer. और चार्ल्स फिनी की प्रार्थनाओं के आंसुओं को हमने देखा. That when he cried, he was baptized with fire. और जब वो प्रार्थनाओं में आंसू बहाता था तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बपतिस्मा उसे मिला. He writes, "Holy Spirit descended on me fully in body and soul. I could feel the wave of electricity going through and through me. It came in waves of liquid love." और चार्ल्स फिनी इस तरीके से लिखते हैं कि जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया तो मेरा शरीर और आत्मा दोनों ही एक बिजली के जैसे उस समय महसूस करने लगे, और परमेश्वर के बदलाव को मेरे शरीर ने देखा. You know, Charles Finney, wherever he went, every liquor shop was closed. People started to cry because their sin nature was revealed. और जहां पे भी चार्ल्स फिनी गए थे वहां पर सारे शराब की दुकानें बंद हो जाती थी. लोग पापों से अपने आप में पछतावा करते थे. Just his look changed everything because not of him, the one who lived in him. और चार्ल्स फिनी की वजह से नहीं, चार्ल्स फिनी के अंदर जो रहता था उसकी वजह से कार्य हो रहे थे. That's why Zechariah 2:5, "I will be a wall of fire around her. I'll be the glory in her midst." इसीलिए जकरिया 2:5 इस तरीके से कहता है कि मैं आग की दीवार बनकर तेरे चारों तरफ रहूंगा. We are called to carry the fire of the Holy Spirit. और हम लोग परमेश्वर की आग पवित्र आत्मा के लिए बुलाए गए हैं. Today, are you ready to carry the fire of revival? क्या आप आज बेदारी की आग को ले जाने के लिए तैयार हैं? Before reviving the nation, God wants to revive His church. और इस देश को हिलाने से पहले परमेश्वर इस कलीसिया को हिलाना चाहता है. The glory of the latter house is greater than the former. He's going to give His glory in an awesome manner to His church. पिछले दिनों की महिमा से ज्यादा आने वाले दिनों की महिमा परमेश्वर के मंदिरों में होगा. God is raising right now an army of prayer warriors. और परमेश्वर एक ऐसे प्रार्थना के योद्धाओं का सेनाओं को उठा रहा है. He's looking for those who are consumed with His presence. और उसके सम्मुख से जल आग से भरने वाले लोगों को वो ढूंढ रहा है. He's calling us to a place of holiness that we can carry His glory. और वो एक ऐसे पवित्र स्थान पर हमें बुला रहा है जहां पर हम उसकी महिमा को उठा कर चल सकते हैं. It's not only going away from sin, it is to set apart. और हम उस पाप से नहीं, हम उसके लिए अलग हो रहे हैं, हम उसके लिए अलग किए गए हैं. Every minute, every second, Jesus is in our thought. और यीशु मसीह हर पल हर दिन हमारे सोच में है. Looking on to Jesus, that is our life. और यीशु की ओर ताकना ही हमारी जिंदगी है. Looking on to Jesus, the author and finisher of our faith. और यीशु मसीह की ओर हमें ऐसा देखना है कि वही शुरुआत और अंत है हमारा. Do you long for revival? क्या आप बेदारी से प्यार करते हैं? Do you want to be a vessel for His glory? क्या आप उसके लिए कोई पात्र बनना चाहते हैं? Are you willing to be consecrated to carry His presence? क्या आप उसके लिए अलग किया करा जाना चाहते हैं कि उसकी सम्मुख को उठाएं? So today God wants to fill you with His presence. आज परमेश्वर आपको उसके सम्मुख से भरना चाहता है. Acts 1:8 says you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे. You will be my witness till the end of the world. In your workplace, in your home, everywhere you will reveal Jesus. पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे. जहां पर तुम कार्य करते हो, जहां पर तुम रहते हो, तुम मेरे गवाह बनकर जियोगे.
So can we ask him today, close our eyes? क्या हम अपने आंखों को बंद कर कर आज उससे मांगे? Let us ask him, God, open the heavens. Let's close our eyes. सब and लोग ask. आंखों को बंद कर कर हम कहें कि प्रभु अपने स्वर्ग को खोल दे। Rend the heavens, Lord. Come down, Lord. परमेश्वर तेरा स्वर्ग इस जमीन पर आए। Set your fire here, Lord. Set your fire on everyone's heart right now, Lord Jesus. परमेश्वर तेरी आग को तू हमारे बीच में भेज, इस समय भेज प्रभु। Lord, make everyone who are here, men and women, with your fire. प्रभु यहाँ पर मौजूद स्त्री और पुरुषों के ऊपर अपनी आग को तू भेज परमेश्वर। Let the fire of your Holy Spirit come upon everyone here, Lord. तेरे पवित्र आत्मा का आग हर एक के ऊपर उतरे। Lord, come, Lord Jesus. Fill us, आइए Father. परमेश्वर आइए और हमें भरिए। Let your fire touch your people. आपकी आग हर एक के ऊपर उतरे परमेश्वर। Let your revival come to this church, Father. तेरी बेदारी इस कलीसिया में आने पाए। Let people cry out for their sins. No और- more sin, Father. लोग और तेरे अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाए और इस कलीसिया में पाप ना हो। No more bitterness, no more anger. नो और कड़वाहट ना हो इस कलीसिया में, और गुस्सा की आत्मा ना रहे इस कलीसिया में, No more seeing wrong things, no more talking bad words. और गंदी बातों को बोलने वाले, पीछे बोलने वाले लोग ना हो इस कलीसिया में। My life is set for you, Lord. Talk to Jesus. प्रभु मेरी जिंदगी तेरे लिए रखी गई है, बात करिए प्रभु से। My life is for you, Lord. मेरी जिंदगी तेरे लिए है प्रभु। Fill me, cry out to God. और परमेश्वर की ओर देखकर आप आंसू बहाइए। Let the world see your power, Jesus. Come down, परमेश्वर come तेरी down. सामर्थ दुनिया देखे। Lord, we touch everyone here with your nail प्रभु हम तेरे pierced नाम से यहाँ पर हर एक को हम छूते हैं। Raise up a generation of people who will never compromise. और परमेश्वर एक ऐसी सेना को उठा जो कभी प्रभु जी समझौता ना करे। Raise up a generation of people who will stand boldly for your name. ऐसी पीढ़ी को उठा जो तेरे लिए खड़े रहे सामर्थ से, Who will spend time at your feet and kneel down to know your ways. और परमेश्वर जो तेरे नाम को जानने वाले बने, Who your word will become the sweetest thing in their life. और आपका शब्द उनके जीवन में मधुरता से बन जाए। Lord, thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Jesus. परमेश्वर। You're going to do amazing things here. आप Fill us परमेश्वर with आप your महान spirit. कार्यों को कर रहे हैं इस जगह में। Thank you for filling, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise. In और हम Jesus' name सारी I महिमा pray. आदर जलाल हम तुझे देते हैं यीशु के नाम से पिता। आइए हम सारे खड़े होकर इस वचनों के लिए अपने जीवन को अर्पण करें, और परमेश्वर हमारे द्वारा एक बेदारी को लाना चाहता है। हालेलुया। एक बेदारी को परमेश्वर हमारे बीच में लाना चाहता है। फिर से वो आग बरसा परमेश्वर, ओ तेरे सामर्थ को, तेरे लहू को हमारे बीच में हमारी कलीसिया में उंडेल खुदा पर। सारे लोग ताली बजाकर परमेश्वर हमारी कलीसिया में एक बेदारी को उंडेल। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र, सब लोग हाथों को उठाकर परमेश्वर से, पवित्र आत्मा तू हमें भर। Oh, restore us, Lord. Refresh us, Lord. Oh, Jesus. Oh, redere la cara da na na na. आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने से उस हवा
तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना बहने दे उस हवा को। Jesus, hallelujah। तेरा दर्शन हमें मिले। हाथ को उठाकर हम सब कहे, by your spirit Lord, உம்முடைய ஆவியை ஊற்றுங்கப்பா, உம்முடைய ஆவியினால எங்களை நிரப்புங்க, உம்முடைய பரிசுத்த அபிஷேகத்தினால எங்களை நிரப்புங்கப்பா, உம்முடைய ஆவியை எங்கள் மேலே ஊற்றுவீராக, இந்த சபை மேலே ஊற்றுவீராக। ஓ ரேகே ரேலாபா கரோல், உம்முடைய அபிஷேகத்தை எங்கள் மேலே ஊற்றுவீராக। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। Jesus, धन्यवाद परमेश्वर, हमें से हर एक को तू अपनी आत्मा से भरकर संभाल कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से पिता, आमीन।